that my board. I'll ask you because I'm using Bluetooth, so it's wireless. If any one of you is completing my question, so he or she can interrupt, stop me while completing my question. Class 8. We were on our when your homework. I have given to you the homework of question. I am going to start the screen. I will not write the complete question. As you can see that it is a complete. It's a word problem, so I cannot write the necessary data. I'm going to read it. It's in 77. Question number 15 is, in optics, the focal centimeters of a lens can be calculated by using the formula, and we are given equal to 1 over u plus 1 by v. Weight is in centimeters. It is the focal length. While u, v. We need to do what which is given in the question, where u and v are the object and the image distance from the center of the lens respectively. आपके पास u है, वो object, the lens distance of object from lens, while v is distance को समझने के लिए थोड़ी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी. फ्री ध्यान लें. ये क्वेश्चन है. जब आप फिजिक्स में लेते हैं कि जी इमेज कैसे बनती है, किसी भी चीज कैसे बनता है, तो कुछ इस तरह का लेंस होता है. डिस्टेंस होता है एफ. शैडो बनाना चाह रहे हो, जब पड़ती है यहाँ से, ये लाइट पड़ जाने के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये इस ऑब्जेक्ट है. फोकल लेंथ ये आपका लेंस से डिस्टेंस जो है वो हम, जबकि इमेज का लेंस से डिस्टेंस आपके पास v होता है. आपको जो रिलेट करने वाला फॉर्मूला आपके पास ये 1 over f is equal to 1 over u plus 1 over v. u आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस. हमने इस क्वेश्चन बैकग्राउंड हिस्ट्री थी जो इस क्वेश्चन के, तो आपके लिए क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाता है क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है व्हाट इज u एंड v. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और v आपके पास है जी, दोनों के दोनों डिस्टेंस जो है वो लेंस से. मैं आपको फर्स्ट पार्ट में कहा है मेक v एज, फॉर्मूला आपके पास है जी 1 over f is equal to 1 over, we have to do in the v first part आना है. तो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट बनाने वाला काम अब आपके लिए 1 over f is equal to 1 over u by v. u को सब्जेक्ट पर u को सेपरेट करना पड़ेगा on one side of equation, so on the other side it will be equal to 1 by u. Now I'm going to, I have to take u on another. f और v का एलसीएम आएगा जी, जहाँ चला जाएगा v minus f is equal to v. Now I'm going for the cross multiplication into v minus f, और ये f हो जाएगा.
1 के साथ मल्टीप्लाई आंसर, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. u into v minus f v. अब मुझे u को बिकॉज v माइनस एफ u के साथ मल्टीप्लाई हो, अदर साइड ऑफ इक्वेशन ये जाकर आपके पास हो जाएगा डिवाइड. तो आपके पास हो जाएगा u एफ v ओवर v, पास आ जाएगा u का फॉर्मूला. हमने बना दिया है फॉर्मूला. फॉर्मूला देख लो हमने कैसे, with the formula that was 1 over f is equal to 1 over u. क्वेश्चन में पहले उन्होंने आपको बताया कि f u आपके पास है जी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आपके पास है जी इमेज का डिस्टेंस. फर्स्ट पार्ट में आपने को सब्जेक्ट बनाना था फॉर्मूले का 1 over 3 को 1 over u plus 1 over v. So on the other side it will be, I have taken LCM of f and v, it will v is equal to 1 by u, because I have to make formula. For this I need to simplify it more. Multiplication over here, u is in fv. Now v minus f is being multiplied, so I have taken it on the other side. So your formula will be u is equal to fv by v minus f. Second part, I am this formula because I think that we have to use it in the next equation. So our second part, hence find the image distance. Image distance क्या था v. Okay, we have done something wrong over here. V as a subject, not u as a subject. Things over here, ये आपके पास u, हमने v को सब्जेक्ट बनाना है, आप v को यहीं पर रहने दे. ये आपके पास हो जाएगा u माइनस एफ u v. ये आपका v आ जाएगा, यहाँ पे u आ जाएगा और u आ जाएगा. ये u यहाँ पर आ जाएगा आपके पास. ये जो दोनों v's हैं ये बदल जाएंगे, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ओवर u माइनस एफ. सेकेंड पार्ट में हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड दे हैव गिवन अस सम वैल्यूज. पार्ट जो है में आपने इसके क्या करना है, यानी कि आपने v की वैल्यू when your focal f is 20 cm and the object distance था u and the object 30 सेंटीमीटर. बहुत आसान, आपको वैल्यूज पुट करके दे दूंगी, लेकिन आपने इसको कैलकुलेट, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग scientific calculator, so you have to by yourself. V value of f is 20. U is 30. Minus 20. And 30 minus 20 हो जाएगा 10. जब आप इसको डिवाइड करेंगे 30 सेंटीमीटर. क्वेश्चन के स्टार्टिंग सेंटीमीटर
आज okay, next I'm going to start your question number 16. Your question number 16 on my page number again 177 is the time taken t seconds for a pendulum to complete one oscillation. Question number 16 से जरा background knowledge जो है वो check कर लें आप. पेंडोलम अगर आपने देखा हो, पेंडोलम एक बॉब होता है, एक स्टील का बॉल होता है. उस बॉल को हमने एक धागे के साथ हैंग किया होता है. जैसे आप लोगों ने देखा हो कि अक्सर एक धागे के साथ बॉल लटका देना लोहे का, उसको हम बोलते हैं पेंडोलम. तो ये पेंडोलम से रिगार्डिंग क्वेश्चन है. पेंडोलम को यहाँ पे लेके जाके आप ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये आपके पास क्या होता है कि जब आप उस बॉब को लटकाते हैं और यहाँ से ऐसे छोड़ देना, वो ऑसिलेट करने शुरू होता है, यानी कि वो आगे पीछे घूमने लग जाता है. जब वो घूमने लग जाता है तो आपको अंदाजा होता है कि ये अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा. इसकी वाइब्रेशन होती है कि जब ये एक बार यहाँ तक जाए, वापस आए और वापस यहाँ तक चला जाए. समझ आता है कि यहाँ से घूम के यहाँ तक जब वो आएगा तो उसकी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी. यही पेंडोलम से रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन है. पेंडोलम आपको क्या कहता है कि द टाइम पीरियड टी इन सेकेंड. तो जो कैपिटल टी है वो आपके पास है जी इसका टाइम पीरियड, और जो कि इसने आपको दिया हुआ जी सेकेंड्स में, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है जी 2 पाई k√L ओवर जी. यहाँ पर टी उसका टाइम पीरियड है कि यानी कि वो वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, या आपके पास टी टाइम पीरियड है सेकंड्स में. पाई आपके पास वही है 3.14 और 3.147 जो भी आप यूज करते हैं. एल आपके पास है जी लेंथ, उस धागे की लेंथ जो आपने जिससे उसको बॉब को बांधा हुआ, और जी आपके पास ग्रेविटी होती है जिसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स 10 होती है. ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आज हम मोस्टली फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. टी आपके पास टाइम पीरियड है, पाई आपके पास 3.147 है, एल आपके पास उस धागे की लेंथ है जिस धागे से आपने पेंडुलम को हैंग किया होता है, और जी आपके पास है जी ग्रेविटी, और जी विच इज ऑलवेज टेकन एज 10. Okay, what we have to do where L is the length of the pendulum and G is taken to be 10. तो ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही उन्होंने आपको बहुत सारी चीजें गाइड कर दी हैं. What you have to do in the first part, make L as the subject of the formula. आपने L को सब्जेक्ट बनाना है फॉर्मूले का. So I'm going to use solve my first part. L को सब्जेक्ट बनाना है, T is equal to 2 pi k√L by G. अब 2 पाई जो है वो इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. टी डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू स्क्वायर√L बाय जी. अब बात ये है कि आपने L को सब्जेक्ट बनाना है. इफ यू हैव टू टेक L एज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला देन यू नीड टू वैनिश दिस स्क्वायर रूट, फॉर व्हिच आई एम गोइंग टू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं. सो आई एम गोइंग टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. टी डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर√L बाय जी, और ये दोनों तरफ मैंने ले लिया है स्क्वायर. ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर. यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा L बाय जी. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा डार्क लिखूं, मैंने ब्लैक मार्कर ही यूज कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू राइट लिटिल बिगर वर्ड सो दैट यू कैन सी द इमेज इन योर फोन क्लियरली. दोबारा से देखना हमने क्या किया, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट. यू वर गिवन विद द फॉर्मूला t is equal to 2 by square root L by G. In the first part, you have to make L as the subject of the formula, for which you need to separate that L. First 2 pi is being multiplied with the factor, so I have divided it on the other side. T by 2 pi is equal to square root L by G. Now I need to vanish the square root, for which I am taking square on both sides.
When you will take the square on both sides, it will be t square, the square of 2 will be 4 and the pi will appear as pi square. When you take the square of the square root, this will cancel out and you will be left with L by G. Because I have to make L as the subject of the formula and G is with the L, so I have to take G on other side. G is being divided, so on the other side it will be multiplied. तो आपके पास फैक्टर आ जाएगा t square g divided by 4 pi square is equal to L. ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला t square, ये मैंने स्क्वायर लिखा हुआ, t square g divided by 4 pi square is equal to L. ये आपके पास बन गया L as the subject of the formula. That was the first part. What you have to do in the second part? Hence find the length of the pendulum. आपने लेंथ ही फाइंड आउट करनी है सेकंड पार्ट में. When it takes, if it takes 20 seconds to complete 20 oscillations. अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्रिक यूज होना है, वो ट्रिक देखें. जब आपने क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट किया था ना, तो उस क्वेश्चन नंबर 16 की पहली लाइन थी कि t इज द टाइम पीरियड. t आपके पास क्या था? टाइम पीरियड था. ये टाइम पीरियड था एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का. उधर लिखा वैसा था वेयर थी द टाइम टेकन t इन सेकंड फॉर अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड था कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है. बट व्हेन वी रीड आवर सेकंड पार्ट, तो उसमें लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड इज टाइम इज 12 सेकंड फॉर 20 ऑसिलेशन. लेकिन हमें तो 20 ऑसिलेशन के लिए फॉर्मूला ही नहीं बनाया. हमारे फॉर्मूले में जो t था वो आपके पास वन ऑसिलेशन के लिए था, लेकिन सेकंड पार्ट में टाइम आपको दिया हुआ है 20 ऑसिलेशन के लिए. तो पहले आपको उसको जो है वो वन ऑसिलेशन के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा. So for which I am going to use that time for 20 oscillation. 20 ऑसिलेशन का टाइम आपके पास है जी 12 सेकेंड. लेकिन हमें टाइम कैपिटल T जो है वो टाइम हमें चाहिए टाइम फॉर वन ऑसिलेशन. ये जो वर्किंग है ये आपके सेकेंड पार्ट की वर्किंग है. सेकेंड पार्ट की वर्किंग, हमें ऑसिलेशन का टाइम पीरियड दिया, लेकिन हमें एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चाहिए. तो 20 को आप 12 के साथ कर देंगे डिवाइड. 12 डिवाइडेड बाय 20. मुझे पता है कि ये छोटी वैल्यू है, वो बड़ी वैल्यू है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है. जब ज्यादा चीजों की कीमत दी हो और आपने एक की निकालनी हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं? डिविजन करते हैं. इसको समझने के लिए आप ये देख लें कि अगर आपके पास 5 रजिस्टर 500 रुपए के हैं, अगर आपके पास 5 रजिस्टर 500 रुपए के हैं, तो एक रजिस्टर के लिए आप 500 को 5 पे डिवाइड करेंगे और जवाब आपके पास क्या आ जाएगा? 100. तो 12 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इज 12 सेकंड. एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालने के लिए 12 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे और जो भी वैल्यू आती है 0 पॉइंट तो कुछ वैल्यू आ रही होगी विच यू हैव टू राइट ओवर हियर. फॉर्मूला हमारे पास था जी t स्क्वायर g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L. ये आपके पास फॉर्मूला था. अब इस फॉर्मूले में सिंपली आप वैल्यूज पुट करें सारी. L इज इक्वल टू जो भी t की वैल्यू आती है, या आपने खुद कैलकुलेट करनी है, जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को यहाँ लिख के स्क्वायर लें. g की वैल्यू आपके पास 10 थी, डिवाइडेड बाय 4 वैसे रहेगा, और पाई की वैल्यू आपको पहले पता है 3.14 होती है. इसका ले लें आप स्क्वायर. यहाँ से आपने t की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लेना है, यहाँ से पाई का स्क्वायर लेना है. स्क्वायर लेके 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ स्क्वायर लेके 4 से मल्टीप्लाई करें. जो दो आंसर्स आते हैं उनको डिवाइड कर दें, आपके पास L का आंसर आ जाएगा. और लेंथ आपके पास, लेंथ ऑफ द थ्रेड वाज इन सेंटीमीटर, तो आपका आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर में. सेकंड पार्ट के लिए दोबारा से सुने. सेकंड पार्ट में एक ही ट्रिक यूज होना है, लेकिन वो ट्रिक बड़ा जबरदस्त था कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि द t इज द टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन. आपके पास एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड था, लेकिन सब्जेक्ट बनाने के बाद जब आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो आपको डेटा में क्या लिखा हुआ था? दैट टाइम पीरियड फॉर 20 ऑसिलेशन. लेकिन हमने 20 ऑसिलेशन का फॉर्मूला ही नहीं बनाया, हमें वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चाहिए. इसके लिए हमने 12 डिवाइडेड बाय 20 किया. जो आंसर आता है वो पॉइंट्स में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा.
उसको यहाँ पुट करें, स्क्वायर ले 10 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर लेके 4 से मल्टीप्लाई. दिस वाज योर 16 question number 16 on page number 177, which is being completed now. Next I'm going to take you towards your question number 17 now. Okay, first I'm going to assign you some homework. पहले homework सुन लें, because I think that I have to take my question answer session as well. So first you need to see what is your homework. Homework के लिए please जरा question number 17 सुन ले. Question number 17 आपके पास क्या लिखा है? Question number 17 is the amount of energy E joules stored in an object with a mass of m kg is given with the formula E is equal to mgh plus half mv square, where h is the height and okay, question number 17, 19 and 20 is your homework. Your homework is exercise 6C, question number 17, 19 and 20. These three questions is your homework, and I will see your homework in next class. I will solve question number 18 in the next session. Yes, I will solve question number 18 in the next session. I think that I am having enough time, so I will solve question number 18 right now. Question number 18 आपके पास क्या लिखा हुआ है? Question number 18. Question number 18 आपके पास लिखा हुआ है, given that 1 by x plus 1 by y, 1 by x plus 1 by y divided by 2 by x is equal to 4 by 3, and we need to find the value of y by x. हमने y by x की value find out करनी है. Simply हमने y by x को subject of the formula बनाना है. Okay, first I'm going to solve question number 18. मैं कोशिश करूंगी to choose the easier path. अब देखें, ये दो फ्रैक्शंस पड़ी हैं. ये फ्रैक्शन का नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4/3. 2 by x डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3 into 1 by x प्लस 1 by y इज इक्वल टू 4 into 2 by x. मैंने क्या किया जी? सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है. ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फैक्टर पूरा इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ पहले एलसीएम ले लें तो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आसान हो जाएगी. एलसीएम आपके पास आएगा एक्स वाई, वाई यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एक्स वन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एक्स. Now you can see that xy is being divided. On the other side it will be multiplied. So 3 into y plus x is equal to 8 by x multiplied by xy. ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. दोनों x आपके पास कैंसिल हो जाएंगे. 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3y प्लस 3x इज इक्वल टू 8y. अब मैं y वाली सारी वैल्यूज एक तरफ कर लूंगी. आ जाएगा 3x 3y इज 8y माइनस 3y. 3x इज इक्वल टू 5y. आपने वैल्यू किसकी निकालनी थी? y बाय x की. तो यू हैव टू टेक x ऑन दिस साइड एंड 5 ऑन दिस साइड. तो आपके पास जवाब आ जाएगा 3 by 5 is equal to y by
क्योंकि आपने y बाय एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको x को यहाँ लेके जाना पड़ेगा। जब आप x को यहाँ लेके जाएंगे 5 को ऑटोमेटिकली यहाँ लाना पड़ेगा, तो 3/5 इज इक्वल टू y बाय एक्स इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। I think that you can solve rest of these questions by yourself of exercise 6C. Now I'm moving towards my now I will go towards your review exercise 6, for which you are going to have a lot of homework. So prepare yourself for that. Now I'm moving towards your review exercise 6. Review exercise 6 की तरफ आ जाए. It's on my page number 178 now. Okay, page number 178, question number 1 is simplify each of the following. I will solve only 2 parts. मैंने आपको 6C का होमवर्क दिया जी, क्वेश्चन नंबर 17, 19 और 26. रिव्यू 6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने होमवर्क करना है. I think you can solve 2 and 3 as well. 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे आप खुद कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 के, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के अलावा बाकी सारा काम आई थिंक आप खुद कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इज योर होमवर्क. थोड़ा होमवर्क ज्यादा हो गया, आई नो, बट सारा दिन आप फ्री होते हैं, तो यू कैन कंप्लीट दैट. आपके पास होमवर्क है जी 6C क्वेश्चन नंबर 7, 19 और 20 और रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 7. ओके, रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 2 पार्ट सॉल्व करने वाली हूँ. वो 2 पार्ट देखें कौन कौन से हैं. इट वाज ऑन माय पेज नंबर 178 आई थिंक. क्वेश्चन नंबर 1 के एफ पार्ट के ऊपर आज क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट लिखा हुआ है 3r minus qs plus 3s minus qr divided by 9 plus q square minus 16. आपने उस हद तक सॉल्व करना है जहाँ इसके साथ मजीद कुछ और ना किया जा सके. तो मैं यहाँ से r और r वाली टर्म्स एक तरफ कर लेती हूँ. या आप अगर q और q वाली एक तरफ कर लें तो भी बेटर है. इन दोनों को एक साथ कर लें और यहाँ से इन दोनों को एक साथ कर लें, क्योंकि जब आपने 4 टर्म्स में से कॉमन लेना होता है, 4 टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम 4 टर्म्स में 2-2 का पेयर बनाते हैं. इस तरह से पेयर बनाते हैं कि दोनों वैल्यूज को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज रह जाए. सो आई एम गोइंग टू रीअरेंज इट. 3r minus qr minus qs plus 3s divided by 9 प्लस q स्क्वायर माइनस 6q. 3 टर्म्स आपके पास पड़ी हुई हैं. 3 टर्म्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद हो तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं. फैक्टराइजेशन के लिए पहले स्क्वायर वाली टर्म q स्क्वायर माइनस 6q और लास्ट पे आपके पास क्या आएगा 9. फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स इन द न्यूमरेटर यू कैन टेक कॉमन r.
यहाँ पर आना है 3r माइनस 3s माइनस QS और माइनस QR। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप 3 कॉमन ले लें, आपके पास रह जाएगा r माइनस s। लास्ट टू टर्म्स में से आप माइनस Q कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस 3s यहाँ पर प्लस रह जाएगा। जब आप माइनस Q कॉमन लेंगे, आपके पास रह जाएगा s माइनस इज ऑलरेडी कॉमन प्लस r। अब r प्लस s प्लस r दोनों एक ही बातें होती हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। फैक्टराइजेशन करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आए, लेकिन आगे सब्ट्रैक्ट करने से 6 आए, तो 3 कर लें, 3 और 3 6 होते हैं, मल्टीप्लाई करने से 9 भी आ जाएगा। क्यू स्क्वायर माइनस 3q माइनस 3q प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 3। अब r प्लस s प्लस r दोनों एक ही बात है, तो आपके पास आ जाएगा r प्लस s इंटू 3 माइनस q। डिनोमिनेटर फर्स्ट टू टर्म्स में से q कॉमन लें, इट विल बी q माइनस 3 माइनस 3। जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा q प्लस माइनस माइनस एंड 3 3 9 हो जाएगा, q माइनस 3 q माइनस 3 हो जाएगा। आई एम गोइंग टू जस्ट इरेज माय फर्स्ट टर्म। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जी r प्लस s इंटू 3 माइनस q डिवाइडेड बाय q माइनस 3 दोनों सेम है। q माइनस 3 यहाँ से उठा लें और आपके पास आ जाएगा जी दोबारा से q माइनस 3 आ जाएगा, q माइनस 3। अब प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूज तो दोनों सेम है लेकिन साइन में गड़बड़ है। जब आपकी दोनों वैल्यू सेम हो लेकिन प्लस वाली चीज माइनस में, माइनस वाली चीज, अब माइनस यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है, दोनों मर्जी चलनी है आपकी। मैं नोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, आर प्लस एस। जब आप माइनस कॉमन लेंगे, नेगेटिव वाली चीज अपने आप प्लस हो जाएगी और प्लस वाली चीज अपने आप माइनस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय क्यू माइनस 3। और यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, क्यू माइनस 3, दोनों आपके पास हो जाएंगे कैंसिल आउट, और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस आर प्लस एस डिवाइडेड बाय क्यू माइनस 3। तो ये आपके पास आ जाता है एफ पार्ट का आंसर। तो आई थिंक बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स योर क्वेश्चन आंसर सेशन। You can unmute yourself one by one and you can go for asking questions. I'm going to turn off my camera if you all have noted down your homework and the question.